عدالتوں میں سیکیورٹی انتظامات کا پول کھل گیا۔ 2 روز میں فائرنگ کا دوسرا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ پنجاب کا نوٹس RPO سے رپورٹ طلب کر لی۔ CPO عمر سعید ملک کہتے ہیں ایسے واقعات کی روک تھام ضروری ہے، وکلاء اور پولیس کے لیے سیکیورٹی نظام بنایا جائے گا۔ احاطہ کچہری میں سخت سیکیورٹی کے باوجود ایڈیشنل سیشن جج راجہ شاہد ضمیر کی عدالت میں فائرنگ کر دی گئی۔ فائرنگ سے پیشی پر آئے 2 بھائی ذیشان اور رمضان جاں بحق ہو گئے۔ IG پنجاب نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی، جبکہ RPO معین مسعود اور CPO عمر سعید ملک نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ CPO کا کہنا تھا کہ ملزم پولیس یونیفارم میں آیا۔ اس سسٹم کو ایک ڈیوائس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو پولیس ملازمین ہیں، وکلاء صاحبان ہیں، ان کا ایک ہم ضرور سسٹم بنائیں، کیونکہ عام بندے کی تو تلاشی آفیسلی ہوتی ہے۔ فائرنگ کر کے احاطہ عدالت میں 2 بھائیوں کو قتل کرنے والا مبینہ ملزم عامر وینس پولیس ملازم اور تھانہ بٹالہ کالونی میں تعینات تھا۔ CPO کا کہنا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر سے مل کر وکلاء اور پولیس اہلکاروں کی چیکنگ کا میکینزم بنایا جائے گا۔ جاں بحق ہونے والے دونوں بھائی تھانہ صدر میں درج قتل کے مقدمہ میں پیش ہوئے تھے۔ دونوں پر 302 کا مقدمہ درج تھا۔ وہ پولیس کی وردی میں تھا اور وہ یہاں پہ ڈیوٹی بھی نہیں کر رہا تھا، تو وہ اس کے پاس اسلحہ تھا، تو جس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ آگے بھی ہم ایک سسٹم بھی ڈیوائس کریں گے۔ گزشتہ سال 4 ستمبر کو 5 بھائیوں نے کانسٹیبل عرفان وینس کو قتل کیا تھا۔ ملزم عامر وینس مقتول کانسٹیبل عرفان کا کزن تھا۔ IG پنجاب نے سپروائزری افسران کو مقتولین کے لواحقین کے ساتھ قریبی رابطہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ وقاص احمد بیگ، سٹی 41، فیصل آباد۔ لانگ مارچ میں فائرنگ سے عمران خان کے زخمی ہونے کا معاملہ، فیصل آباد ڈویژن میں آج وکلاء نے عدالتی بائیکاٹ کیا۔ پنجاب بار کونسل کی اپیل پر ڈسٹرکٹ بار کونسل فیصل آباد نے آج عدالتوں کا بائیکاٹ کیا۔ ہڑتال کے باعث کیسز کی سماعت نہ ہونے سے سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ میں انصاف لائر فورم کی جانب سے عدالتی بائیکاٹ کیا گیا۔ متعدد کاروباری تنظیموں نے بازار بھی بند رکھے۔ جنرل سیکرٹری اعجاز خانوانہ نے کہا کہ کپتان کی ایک آواز پر ملک جیم ہو چکا ہے، اگلے اشارے کے منتظر ہیں۔ دیگر عہدیداروں نے بھی سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ سب سے پہلے تو یہ جو خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ رات کو بھی ہم نے بہت بڑی ریلی نکالی تھی، احتجاجی ریلی، جس میں ہر مکتب فکر کے لوگ شامل تھے۔ چنیور ڈسٹرکٹ بار نے بھی عمران خان پر حملے کے خلاف آج ہڑتال کی۔ وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے، جس کی وجہ سے سائلین کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ صدر بار چودھری اشرف گجر، سابق صدر افضل اور سابق سیکرٹری چودھری شاہد یعقوب نے واقعے کی مذمت کی۔ صدر چودھری اشرف گجر نے کہا کہ ریاست قومی لیڈر کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی سیاسی جو سنیریو ہے، اس میں بہت ساری چینجز آئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیگیٹو چینجز آئی ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بالکل پرزور مذمت کرتے ہیں اس وقوعے کی، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ خان صاحب کو حفظ امان میں رکھے۔ شورکوٹ میں انصاف لائرز فورم نے عمران خان پر حملے کے خلاف احتجاج کیا۔ MNA صاحبزادہ امیر سلطان، MPA آصف کاٹھیا، معاون خصوصی میاں حاکم کاٹھیا سمیت دیگر PTI رہنماؤں نے شرکت کی۔ وکلاء نے عمران خان پر حملے کے خلاف بار روم سے ریلی نکالی۔ تحصیل بار بھوانہ میں بھی وکیل آج عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ اس موقع پر سابق صدر تحصیل بار چودھری غلام شبیر شاہد کا کہنا تھا کہ عمران خان ملک اور عالم اسلام کے مقبول ترین لیڈر ہیں، ان پر حملے کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پر فائرنگ کا معاملہ، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب حماد ذوالفقار انصاری کی مذمت، ان کا کیا کہنا تھا یہ آپ کو سناتے ہیں۔ سلوک کیا گیا، میں ان کی پریس کانفرنس 2-3 دن سے متواتر سن رہا ہوں، تو وہ جو رونا رو رہے ہیں، اور پھر صابر شاکر صاحب آپ ہی کی صحافی کمیونٹی کے جو باہر گئے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے سمیع ابراہیم، عمران خان، جو ان کو تنگیاں آ رہی تھیں، جو بار بار کہہ رہے تھے، ان کے بیانوں کو کل کے واقعے نے یہ تقویت دے دی ہے۔ سو ہماری یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ غیر ملکی اور اندرونی جو دوسرے عوامل ہیں جو اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں، جو نہ تو ملک میں پرامن ماحول چاہتے ہیں، اور یہ میں اندرونی اور بیرونی عناصر کو کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی بھی صورت نہ پاکستان، نہ پاکستانی عوام، نہ پاکستان کے اداروں کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ سو اسے آپ آخری حد تک لڑائی کو مت لے کے جائیں۔ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ حالات سازگار رہیں اور سب پرامن طریقے سے اس ملک میں رہیں، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اور اسے ہم ہی نے بہتر کرنا ہے۔ سر آپ یہ بتائیے کہ آپ پنجاب حکومت کے اسپیشل اسسٹنٹ، لیکن کل کے واقعے کے بعد ان پر بھی جو کافی زیادہ انگلیاں ہیں وہ پرویز لائی صاحب پر بھی اٹھ رہی ہیں اسپیشلی کرنے کو لے کر، اس کے ساتھ ساتھ مودی کی جو رہنمائی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر پر پتھراؤ کا معاملہ، فیصل آباد کے لیے قیادت کے وزیر اعلیٰ پنجاب RPO CPO پر شدید تنقید،
फरूख हबीब MPA वारिस अजीज के खिलाफ थाने में दरखास्त दे दी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। राना सनाउल्लाह के घर पर पथराव के वाक़े के बाद फैसलाबाद की लीगी क़यादत भी मैदान में उतर आई। वज़ीर आला परवेज इलाही CPO RPO फैसलाबाद पर बहुत से सवालात उठा दिए। शेख इजाज ने RPO CPO को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब राना सनाउल्लाह के घर पर हमले की इत्तला पुलिस को मौसूल हो गई थी तो क्यों नफरी नहीं मुहैया की गई। इनका मजीद कहना था कि PTI वालों की रेड लाइन इमरान खान तो हमारी रेड लाइन हमारे कायदीन है। अगर अब हमारे घरों पर हमला हुआ तो रद्द अमल शदीद होगा। तो फिर आपने जो इरादतन पर्पसली आपने कल जो फिर लोगों को इंस्टिगेट किया और आज हमें बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि खान साहब आपने पहले भी एक मरतबा राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद से ललकारा था। साबिक वजीर मुमलिकत फरूख हबीब और MPA मियां वारिस के खिलाफ दरखास्त थाना समनाबाद में जमा करवाई गई। PTI की मकामी क़यादत और 125 नामलूम अफराद दरखास्त में मुलज़िम करार। दरखास्त के मतन के मुताबिक जलसे में फरूख हबीब और मियां वारिस ने शुरका को हमले के लिए उकसाया। मदई इरफान आसिफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमलावरों ने दफ्तर का कीमती सामान और साइन बोर्ड तोड़े। हमलावर दफ्तर पर पथराव करके धमकियां देते रहे। हम सबसे पहले उस हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। न सिर्फ उस हमले की मजम्मत करते हैं बल्कि ऐसी सोच और ऐसी ज़हनियत की भी मजम्मत करते हैं जो पाकिस्तान के अंदर सियासत में अदम बर्दाश्त को फरोग दे। सियासी मैदान जो है उन्हें वो सियासी ही रहना चाहिए, उन्हें खूनी मैदान नहीं बनना चाहिए। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि हम इंतशार की सियासत न करते हैं और इसको फरोग का इरादा नहीं रखते। कैमरामैन मोहम्मद मौजम और साथी रिपोर्टर तैयब मकबूल के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में सुई गैस का बहरान पैदा होने लगा। कई घंटों की लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन परेशान हो गए। ना सुबह का नाश्ता ना ही रात का खाना मैसर। खातून ने सर पकड़ लिए। की खवातीन कहती हैं कि गैस की बंदिश ने परेशान कर दिया है। गरीब आवाम कहाँ जाए। हुकूमत ने तो 2 वक्त की रोटी खाना भी महाल कर दिया है। सुई गैस की लोड शेडिंग से कई मुश्किलात का सामना है। बहुत परेशान है इस मसले से क्योंकि हमारे बच्चे भूखे चले जाते हैं। हमारे हस्बैंड भी देखिए हम गरीब हैं, इतने ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। सिलेंडर वगैरह तो हम नहीं कर सकते। अगर आवाम हमारे साथ तावन नहीं करेगी तो हम कैसे चलाएंगे। ये गैस है जो हमें जब सर्दियों में जरूरत होती है तो नहीं होता, गर्मियों में हम इसे क्या करेंगे। तालिब कहते हैं यूनिवर्सिटी जाना हो तो नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं होती जो जेब पर भारी पड़ने लगी है। यूनिवर्सिटी में रोज पैसे लगाकर नाश्ता करना पड़ता है। खवातीन मजीद कहती हैं कि बच्चों ने नाश्ता करना हो या खाना पकाना हो, गैस नहीं होती, बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं। नाश्ता वाकई सुबह नहीं होता, गैस नहीं होती तो मामा नाश्ता भी नहीं बनाती, तो फिर हमें वहाँ जाके इतने मनी दे के वहाँ से खरीदना पड़ता है, कुछ खाना पड़ता है। अब डेली रूटीन पे हम लोग जंक फूड तो नहीं यूज कर सकते ना यूनिवर्सिटीज में, इसलिए ब्रेकफास्ट सबसे अच्छा करना होता है, वही सुबह गैस नहीं होती। हुकूमत हमें ये बता दे कि हम कहाँ जाएं। गरीब किसको अपना गम सुनाए। मुतालबा करते हैं कि सुई गैस लोड शेडिंग पर काबू पाया जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा सुई गैस ने कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस की कीमत फी MMBTU 2 गुना से भी ज्यादा कर दी। छोटे सनतकारों ने हुकूमत के इस ऐलान की मजम्मत की है। गैस की कीमत 1480 रुपये फी यूनिट बढ़ाई गई। सनतकार कहते हैं पहले ही कारोबार ना होने के बराबर है। इस पर बढ़ती महंगाई ने मजीद हालात तंग कर दिए हैं। कारोबारी हजरात का कहना है कि कमर्शियल सार्फिन को मौसम सरमा में गैस महंगी मिले तो इन्हें कारोबार बंद करना पड़ेगा। इन्होंने हुकूमत से अपील की कि गैस की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए और कीमतों में कमी की जाए। कौमी खजाने से भारी तनख्वाहें लेने वाले सरकारी मुलाजमों की बड़ी तादाद नॉन फाइलर निकली। महकमा पुलिस के 4000 से ज्यादा मुलाजमीन ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा न करवाई। महकमा तालीम के 40% मुलाजिम टैक्स नादहिंदा निकले। FBI इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की डेडलाइन में तौसीक कर दी, मगर सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद ही नॉन फाइलर्स है। माहाना 50,000 या इससे ज्यादा तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के पाबंद हैं। गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स महकमा तालीम फैसलाबाद के रेडार पर आ गए। बगैर रजिस्ट्रेशन चलने वाले 210 निजी स्कूलों को नोटिस अरसाल कर दिए गए। 10 नवंबर तक तहरीरी वजाहत भी मांग ली गई। रजिस्ट्रेशन न करवाने पर भारी जुर्मानों की वार्निंग जारी कर दी गई। सेक्रेटरी स्कूल्स के खसूसी टास्क पर महकमा तालीम फैसलाबाद के गैर रजिस्टर्ड स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने 210 निजी स्कूलों को बगैर रजिस्ट्रेशन इदारा चलाने पर कानूनी कार्रवाई के नोटिस भिजवा दिए हैं। टोबा टैक्सिंग में इंसदाद डेंगू मुहिम के दौरान मुख्तलिफ महकमे गैर संजीदा निकले। डिप्टी कमिश्नर अरशद भदर ने खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान से जवाब तलब कर लिया।
इंसदाद डेंगू के हवाले से DC टोबा टेक सिंह चौधरी मोहम्मद अरशद भदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। CUL डॉक्टर काशिफ बाजवा ने इंसदाद डेंगू की मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में इंसदाद डेंगू के हवाले से टोबा टेक सिंह में इंतजाम का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान की जवाब तलबी कर ली। 4 महकमों, नर्सिंग कॉलेजेस, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, पंजाब एजुकेशन और कायदे आज़म अकेडमी की खराब कारकर्दगी पर रिपोर्ट तलब कर ली गई, जबकि 6 महकमों के अफसरान की गैर हाजिरी पर जवाब तलबी की गई। डिप्टी कमिश्नर चौधरी अरशद भदर ने डेंगू टीमों की इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस का जायजा भी लिया। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में 95 करोड़ की अद्वियात खरीदी, मगर मरीजों की रसाई नामुमकिन है। अस्पताल में अद्वियात का फुकदान पैदा हो गया। अलाइड अस्पताल में अद्वियात का फुकदान पैदा हो गया। शोबा बैरूनी मरीजा में अद्वियात ना मिलने पर मरीज फट पड़े। कहते हैं कि डॉक्टर की जानिब से 5-6 अद्वियात लिखकर दी जाती हैं, मगर फार्मेसी में सिर्फ एक दवाई मिल रही। सरकारी अस्पताल में अगर अद्वियात नहीं मिलेंगी तो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं। महंगी अद्वियात प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से खरीद नहीं सकते। 3 जुम्मे हो गए आते हुए, सिर्फ 1 या 2 दवाई मिलती है, उसके अलावा कोई नहीं। अब गरीब आदमी मुझे बताओ, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो बाहर से क्या जाके, ये हॉस्पिटल बना है हुकूमत का, अगर हुकूमत इधर दवाई नहीं रखेगी तो उनको क्या फ़ायदा इधर आने का। जी सर, ये 3 गोलियां लिख कर दी थी, इसमें से मुझे 1 गोली मिली है, ये वाली। सिरप लिख के दिया था, वो भी नहीं इनके पास है। ये मेरी बेटी बीमार है, उसके लिए ये डॉक्टर साहब ने लिख के दी ये दवाई, ये भी इनके पास कोई दवाई नहीं है इनके पास। डॉक्टर अमाद यूब का कहना था कि शोबा बैरूनी मरीजा में 127 अद्वियात में से कम होकर 60 इकसाम के अद्वियात मौजूद हैं। OPD में अद्वियात की कमी नहीं, मतबादल 60 की अद्वियात मौजूद हैं। हमने 95 करोड़ रुपए की अद्वियात खरीद ली हैं। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में अद्वियात मौजूद हैं, पास होते ही हमें मिल जाएंगी। फिलहाल अद्वियात का थोड़ा मसला है, वो भी खत्म हो जाएगा। हमने वाफर मिकदार में अच्छी क्वालिटी की अद्वियात खरीदी हैं, उम्मीद है ये अद्वियात पूरा साल चल सकेंगी। 127 से 140 तक मेडिसिन हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी हैं। इस टाइम भी अभी डिटेल्स आती भी जा रही हैं, उसके बावजूद 60 मेडिसिन OPD में मौजूद है। मेडिसिन जो हम अगर खुदा ना खास्ता कोई अवेलेबल नहीं होती तो उसकी जगह जो उसका सॉल्ट, कोई दूसरा सॉल्ट होता है उसी ग्रुप का, तो वो हम अवेलेबल करवा देते हैं। अलाइड अस्पताल की शोबा बैरूनी मरीजा में तकरीबन 5000 मरीज इलाज मुआलजे के लिए रजू कर रहे हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में म्यूनिसिपल वेस्ट में मेडिकल वेस्ट के शामिल होने का इंकशाफ हो गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रखे गए कंटेनर के गिर्द मेडिकल वेस्ट मौजूद, यरकान जैसी बीमारी के फैलने का खदशा बढ़ गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंतजामिया की बड़ी नहली सामने आ गई। हॉस्पिटल में म्यूनिसिपल वेस्ट मेडिकल वेस्ट में शामिल होने लगा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से रखे गए कंटेनर के गिर्द मेडिकल वेस्ट मौजूद पाया गया। इंजेक्शन, कांच की बोतलें और ड्रिप्स खुले आम जमीन पर फेंक दी गईं। राहगीरों और सफाई करने वाले अमले में यरकान और एड्स जैसी बीमारी फैलने का अंदेशा पैदा हो गया। अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए अलग यूनिट मौजूद, मगर सफाई के अमले की गफलत शहरियों के लिए नुकसानदा साबित हो सकती है। मेडिकल वेस्ट है जिसको डिस्पोज करने के लिए इधर DHQ के साथ यूनिट भी बनाया गया है, बजाय वहाँ पर फेंकने के अस्पताल इंतजामिया के जो मुतलका अमला है उन्होंने इस मेडिकल वेस्ट को इधर फेंका हुआ है, जो डेफिनेटली कोई ना कोई जो यहाँ पर कचरा उठाने वाला आएगा वो इसको हाथ वगैरह लगाएगा, वो फिर आगे इस तरह फैलेगा, यानी कि इससे जरकान की बीमारियाँ वो फैल रही हैं। MS डॉक्टर इर्तजा शाह ने City 41 की निशानदेही पर मुतलका हुकाम को सख्त नोटिस जारी करते हुए हिदायत जारी की कि म्यूनिसिपल वेस्ट और मेडिकल वेस्ट को अलग अलग ठिकाने लगाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, City 41, जंग। मौसम बदला लेकिन जंग के हालात न बदले। मौसम की शिद्दत में कमी भी सीवरेज मसाइल हल न कर सकी। नकासियाब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बस से बाहर हो गई। जिला इंतजामिया भी रिलीफ फराहम करने में नाकाम रही। यह है जंग का इलाका सेवर लाइन, जहां सेवरेज का पानी गलियों में नजर आ रहा है। मौसमी शिद्दत कम हो गई, पानी के इस्तेमाल में भी कमी हुई, मगर सेवरेज निजाम दुरुस्त ना होने से इलाके की किस्मत ना बदल सकी। कमर्शियल एरिया भी साथ है नवाज चौक का, साथ एक पब्लिक ऑफिस है गवर्नमेंट सेक्टर का, तो इधर से पब्लिक का काफ़ी आना जाना है और काफ़ी इधर डिस्टर्बेंस हो रही है इस वजह से। तो आई थिंक कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फौरी फोकस करें इस एरिया को। सिविल लाइन्स में जंग के मुतद्दिद इलाकों से पानी की निकासी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बस से बाहर है। जिले इंतजामिया भी सेवरेज मसाइल से रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम ना उठा सकी, जिस पर इलाका मकीन ना ला है। इससे बदबू आती है, हमारे क्लाइंट वापस चले जाते हैं, हमारे बहुत मुश्किलात हैं। यहाँ पे नमाजी की जगह आना जाना रहता है, ठीक है, उनके कपड़े वगैरह गंदे होते हैं।
नवाज चौक से मुल्हिका इलाके भी सीवरेज मसाइल से बुरी तरह मुतासिर हैं। शहरियों ने इलाके से सीवरेज मसाइल के हल के लिए अपील की है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, CT41 जंग। सरकारी स्कूल और कॉलेज के तलबा बसों की छतों पर खतरनाक अंदाज में सफर करने पर मजबूर हो गए। कुछ तलबा आने जाने के लिए हजारों रुपए खर्च करने लगे। हुकूमत से मुफ्त तालीम के साथ फ्री ट्रांसपोर्ट फराहमी का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में सरकारी तालीमी इदारों के तलबा के लिए हुकूमत की तरफ से ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम नहीं। स्कूल और कॉलेज आना जाना भी तलबा के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। तलबा स्कूल और कॉलेज आने जाने के लिए बसों की छतों पर खतरनाक अंदाज में सफर करने पर मजबूर हैं। कुछ तलबा रिक्शा और दीगर जराए इस्तेमाल करके किराए की मद में माहाना 3 से 5 हजार रुपए तक खर्च करने लगे, जो वालिदैन पर इजाफी बोझ है। तलबा ने हुकूमत से मुफ्त तालीम के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी मुफ्त फराहम करने का मुतालबा किया है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हर कॉलेज के लिए एक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, ताकि जो तलबा आते वो आसानी से अपने घर से रवाना हो सकें। लेकिन पिछली दफ़ा ना इधर इस्लामिया कॉलेज के सामने हादसा भी हुआ था ये ट्रांसपोर्ट की वजह से, तो लिहाजा रिक्वेस्ट इनसे यही है कि ट्रांसपोर्ट फ्री होनी चाहिए। अभी जो भी हैं, जो हमारी फीसेज होती हैं वो भी फ्री होते हैं, फ्री पढ़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का इदारा है, तो लिहाजा ये जो ट्रांसपोर्ट का है ना ये भी फ्री होनी चाहिए। तलबा कहते हैं बसों की छतों पर सफर से कई हादसा भी पेश आ चुके। बस के अंदर सफर करने पर किराया अदा करना पड़ता है। हुकूमत तमाम रूट्स पर तलबा के लिए मखसूस वक्त में फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करे। बसों की छतों पर तलबा का सफर करना किसी हादसे का पेश खैमा हो सकता है। हुकूमत को चाहिए कि तमाम तालीमी अदारों के तलबा के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करे। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। भवाना में खातीन पर घरेलू तशद्दुद का सिलसिला न थम सका। नलका अड्डा की रिहायशी 20 साल किश्वर बीबी पर ससुराल की तरफ से मुबैना तशद्दुद का वाक़या सामने आ गया। खातून पर देवर गुलाम अकबर और ज़िशान ने मुबैना तशद्दुद किया और कैंची से सर के बाल भी काट दिए गए। फोन आया हमसायां दा, इन्होंने देरा मार मार ते सुटिया, जेले मार मार ते सुटिया उन्हें कैंची नाला सर वेख सकते हो दे वाल उन्हें कोट दिते हैं जी, काटते तो उन्हें वाल सारा महल्ले दे विच उन्होंने दौड़े आया। इस मौके पर मुतासरा किश्वर बीबी की वालदा शमीम बीबी का कहना था कि मेरी बेटी की शादी बूटी वाला पर नूर अकबर के साथ हुई है। बेटी के ससुराल वाले मामूली झगड़े पर तशद्दुद करते हैं। एक हफ्ता कबल देवरों गुलाम अकबर ज़िशान हैदर ने मेरी बेटी पर तशद्दुद किया, उसके बाल भी काट दिए और गाँव में घुमाया गया। उन्होंने 10 बार कॉल की मगर पुलिस मौका पर ना पहुंची तो वो खुद पुलिस को लेकर मौका पर आए। उनका कहना था कि गिरफ्तारी के 4 रोज बाद मुल्जमान को बगैर कानूनी कार्रवाई के छोड़ दिया गया है। वो गरीब हैं जबकि मुल्जमान बासर हैं। 10 कालां कीतियां, 10 कालां करते साड़ी मौजूद पुलिस नहीं पहुंची। मुड़ असीं 10 कालां तो बाद बकायदा थाने असीं आप खुद पहुंचे हैं। साढ़े नाल थानेदार और टुरिया भी घंटे बाद 2 बादू नाल उतो उस बंदे सारे फाड़े आंदे ने, फाड़ते उस बंदे छड़ दिते। बराए मेहरबानी तुहाडे को हाथ जोड़दे, वजीरे आला नहीं जोड़दे हैं, वड्डे SHO थानेदार DSP भाई साडा इंसाफ साडा घर सन मिलिया जाए। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब DPO चनियोट से अपील की है कि मुकदमा दर्ज करके मुल्जमान को गिरफ्तार करके उनको फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, CT41 भवाना।